yes. Baba center. Baba center. Baba ये Baba. Baba center. Baba मारने लगे सर. दोनों को. Wait. Baba center. Baba ये Baba. ये Baba center. ये विनोद तेरा Baba center. Baba straight. Baba ये straight. सामने देखो सामने. Baba सामने. Baba ये. अरे बस वीडियो की बात. Baba ये. विनोद फ्लैश ब्लॉक कर रहा है यार ये सर आप भी सेंटर बाबा इस तरफ देख रहे हैं बाबा इधर बाबा इधर भी देखो बाबा इधर भी देखो बाबा सामने यो अभी आदित्य बाबा सेंटर बाबा सेंटर बाबा यहाँ पे बाबा सामने थैंक यू सर थैंक यू बाबा बाबा सेंटर बाबा सेंटर बाबा यहाँ सामने बाबा सेंटर स्ट्रेट आपके बाबा हाथ विनोद तेरा हाथ सेंटर रखना बाबा सेंटर बाबा सेंटर देख रहा हूँ बाबा थैंक यू बाबा थैंक यू बाबा अमेजिंग बहुत मैं हमेशा कहती हूँ भूमि इज़ बीन सोल रेंचिंग एंड सोल सेटिस्फाइंग. It's been very difficult. It's I think Umang sir always makes films that are very challenging, very मतलब आपको निचोड़ के. So the subject is also like that. So it's been quite hectic in that way, but it's also been amazing just to be able to live that journey, to work with Sanju sir. I never thought that I would get an opportunity to work with him, but it's been amazing to work with him. And I have messages from so many people for him, which maybe I'll give him today. जितना कि हमने सुना है कि योर क्या हुआ ठीक है हाँ फिर से टेक 2 फिर से जितना कि हमने सुना है कि आपका और बाबा का जो एक डैडी और बेटी का जी तो वो कैसा रहा एक्सपीरियंस. हमने जो थोड़ा बहुत देखा है कि आप उनके बालों में डाई कर रही हैं. अच्छा देखा थोड़ा बहुत हमने देखा था. अच्छा हाँ आप बताइए कि कैसा रहा एक्सपीरियंस संजय दत्त के साथ का काम करने. मतलब जैसे मैंने कहा कि आई डिडंट थिंक दैट आई वुड एवर गेट एन अपॉर्चुनिटी टू वर्क विद संजू सर एंड टू हैव ऐसी टाइप की जो कहानी है एक फादर और डॉटर की कहानी. एक तो बहुत एनीवे स्पेशल होता है द रिलेशनशिप बिटवीन अ फादर एंड डॉटर मदर एंड डॉटर. दीज आर वेरी स्पेशल रिलेशनशिप्स. अब मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है. और जो छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो एक करीबी होती है बिटवीन फादर्स एंड डॉटर्स. I think the way that this has been shown in the film is very sweet and just to live that, जब आप film करते हैं you actually live that, for that time. So it was very special to have Sanju sir and he's also he's so amazing to work with just because apart from the fact वो बहुत हंसाते हैं. एक तो एक शॉट में हम लोग रो रहे हैं उसके एक सेकंड पहले वो आपको हंसाएंगे. But he's very natural and it's so amazing to react to him because वो कभी कुछ और कर देते हैं and you naturally react to him. So it's really been amazing. Ma'am, it's a comeback movie of Sanjay sir. So how you are excited for it? I'm excited just like you all are excited. I think everybody is excited and the same way I'm also a very big fan of his and I'm also really excited. And I've seen how he has worked on this film. Like he got hurt. एक सेकंड के लिए भी वो रुके नहीं. एक्शन सीक्वेंस के समय उनको चोट लगी immediately उठ के उन्होंने take दिया. So I've seen how he has worked and I'm dying to now watch him on screen even though I have seen him like this. Most of the scenes are from Agra only. So Taj how Mahal you have enjoyed the symbols of love shooting and Taj Mahal वो कैसा we're going to see any love in the scenes something. See, I don't want to tell you anything about this story, but there is a reason that they have set it in Agra, because Agra is the city of love and it's such a it is a
you know, it is a metaphor for love, but at the same time, what happens in this film is kind of diametrically opposite to that. So I think that is why Umang sir chose the film. Also, Agra में एक flavor है, बहुत गलियाँ और बहुत सारे plastic bags. I wish नहीं होते लेकिन हैं. But I'm just kidding. But anyway, so Agra has a lot of flavor. उनकी एक vibe है और बहुत सुंदर भी है, especially that Taj area. तो it's that. ओके अदिति जी, जैसे कि हम सभी ने देखा कि संजय दत्त की बायोपिक फिल्म भी आ रही है और रणबीर कपूर कर रहे हैं, थोड़ा सा जो उनका लुक आया है आपने भी आई थिंक देखा होगा, तो आप बताइए कि आपको कैसा लगा? मैं रणबीर कपूर की बहुत बड़ी फैन हूँ। जिस तरह से रणबीर कपूर ने अपने आप को ट्रांसफॉर्मिंग किया है, आप बताइए कि एक तो वो राजू सर की फिल्म है। आई मीन ही इज़ जस्ट अमेजिंग। आई मीन हिज स्क्रिप्ट्स आर अमेजिंग, ही डायरेक्ट्स अमेजिंगली। वो बहुत ही, एक तो उनकी फिल्मों में इट्स मच मोर देन अ फिल्म। वो हम लाइक इवन मुन्ना भाई, 3 इडियट्स, इट्स सेज सो मच मोर देन जस्ट दैट फिल्म, राइट? सो आई एम श्योर इवन दिस, एक तो संजू सर की कहानी जो है, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट विद हिज ओन स्टोरी। वो ऐसे बैठ के कुछ किस्से बताते हैं कि आप हैरान हो जाते हैं कि इतना ईजिली कैसे, आई मीन ही सेज इट्स इन सच एन अमेजिंग वे। सो आई थिंक जस्ट द फैक्ट कि क्या हुआ, जस्ट द फैक्ट कि ये कहानी बताई जा रही है इज़ इनक्रेडिबल। एंड रणबीर, लाइक आई सेड, आई एम अ वेरी वेरी बिग फैन ऑफ रणबीर। एंड उन्होंने सच्ची में अपने आप को ढाल लिया है, उस उनका एक मैनरिज्म भी है। एंड इनफैक्ट मैं उनसे जाके मिली भी थी ऑन सेट, बिकॉज हम लोग पास में शूटिंग कर रहे थे। सो आई सॉ संजू सर, आई वाज शूटिंग विद हिम एंड देन आई वेंट एंड सॉ रणबीर एंड आई वाज लाइक, ये हो क्या रहा है यहाँ पे? सो इट वाज रियली अमेजिंग एंड या आई थिंक इट्स गोना बी एपिक। इट्स गोना बी, क्योंकि आज हम एक रैप अप की एक सक्सेस पार्टी भी कहती है, रैप अप पार्टी, अब मैं पूरा प्रमोशन का काम यहीं पे करा रहा हूँ। प्रमोशन तो कितना एंजॉय होने वाला आज की शाम? यू हैं, बाबा हैं, एक्चुअली हम लोग करीब सारे स्टार कास्ट। नो, आई एम रियली हैप्पी बिकॉज यू नो द फिल्म इज़ वेरी हेक्टिक। एक बहुत इंटेंस ड्रामा है, तो वी हैव बीन सो लाइक हेक्टिक थ्रू द शूट ऑफ द फिल्म कि हमें एक सेकेंड का मौका नहीं मिला है टू चिल। दो संजू सर लव्स टू फीड पीपल एंड very often in Agra he would have this amazing buffet, like amazing khana for all of us, and it was really really sweet, but actually chill time का मौका नहीं मिला। So we are going to chill today, which is really really nice. मेरा शूट है कल बहुत सुबह, तो मुझे एक्चुअली वापस जाके सोना भी पड़ेगा क्योंकि हम लोग something, but we have been shooting nights, so literally for the past 5 days I have slept 3 hours, 2 hours, so I hope that I can have a great time, but I hope that I also get some sleep. जैसे कि मैम आपने कहा कि आप रणवीर के भी फ़ैन है, तो आप किस मूवी के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है, भूमि या बायोपिक सर की? That's so mean. I can't answer that question. Both. मैं एक फिल्म के लिए क्यों एक्साइटेड हूँ? मैं बहुत सारी फिल्म्स के लिए एक्साइटेड हूँ। ओके, तो आपका जो अपकमिंग प्रोजेक्ट जिसके लिए आप शूटिंग कर रही हैं, क्या नाम है फिल्म का, या फिर कुछ बताना चाहेंगे? But at the moment फिल्म है, एड शूट की, वो नहीं, that's something else. नहीं, वो मैं नहीं बता सकती आपको, सॉरी। But अभी तो मैं I'm going to hopefully go back to the Padmavati set because that's अभी काफ़ी बाकी है उसका, and yeah, so at the moment that's what I'm doing. तो क्योंकि पद्मावती की अगर मैं बात करूँ, कई सारे प्रॉब्लम के बाद अब हमने जो सुना है कि कंटिन्यू शूटिंग चल रही है, तो आप बताइए कि ये कब तक आ जाएगी पद्मावती? नवंबर, दिसंबर? Actually I'm the wrong person to answer this question. आपके अनुसार? नहीं, मेरे अनुसार मैं तो कुछ भी बोल सकती हूँ। No, I'm the wrong person to answer this question. I think there are people who are sort of who are handling this, and they are very good at what they're doing. I'm an actor and I'm just so blessed to be working with them that this is not a question I can. सच्ची में मैं कैसे आंसर कर सकती हूँ question? I just hope and pray that no difficulties are faced, because I really believe that somebody like Sanjay sir is somebody we should, Sanjay Leela Bhansali sir, since there are 2 Sanjay sirs I'm talking about, he's somebody that we should be proud of, और उनकी आवाज़ हमें कर्ब नहीं करनी चाहिए. He's somebody we should, like, he creates cinematic history and we should really be proud of him, and we should give him a platform to make his films in peace, because he makes beautiful films. Thank you so much. Enjoy the